first question was that what is variation. So here she has given the answer that is variations are the differences, ठीक है, amongst the parents and the offsprings, ठीक है, whatever the physical or the genetical variations are there, that is called as a that differences are there, that is called as a variations. Okay. I think you have given the right answer. But what is variation? It is clear. But why this variation occurs and how it is benefited for the upcoming generation, it is not clear. So I think when we are discussing about the chapter reproduction, I have told you that these variations occur due to the formation of the gametes, or when the gametes are formed and the fusion of occur for the formation of the zygote during the time of fertilization, that gametes get fertilized and the zygote is formed. So during that time, what happens? The variations occur. So variation is a phenomena, means that is a differences amongst the parents and the young ones, and this occurs due to the formation of the gametes, because we know that for the sexual mode of reproduction, gametes are required, and gametes are required for the formation of the young zygote. ठीक है, यंग जाइगोट के लिए आपको गैमीट्स को फॉर्म करना है, और गैमीट्स कब बनते हैं? गैमीट्स तब बनते हैं जब एक हमारी एज जो है वो प्यूबर्टी को रीच हो जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स, और गैमीट्स आर द सेक्स सेल्स. I have already given the detailed explanation of that. Ki what are gametes? Gametes are the sex cells that are responsible for the fertilization, that are responsible for the formation of the zygote. So during the fertilization, what occurs? Gametes from the both the parents of opposite sexes, means from the male partner and the female partner, they get fused. And during the fusion, what occurs? During the formation of the gametes, what occurs? Whatever the qualities and characters are there in the parents, that are not totally copied in that gamete. जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते यंग वंस में, कुछ जो होते हैं वो कुछ मिस आउट हो जाते हैं, या गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम, या फिर व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग ऑन, व्हेन द गैमीट्स आर गेटिंग फर्टिलाइज्ड, एट दैट टाइम सम ऑफ द कैरेक्टर्स या सम ऑफ द डीएनए या क्रोमोसोम्स गेट क्या कहते हैं रिमूव्ड आउट, या सम कुछ ओवरलैपिंग इज देयर. सो दैट इज द रीजन व्हाई द वेरिएशंस अकर. So I think it is clear to you why the variations occur. Variations occur due to the formation of the gametes, during the formation of the gametes, and when the gametes are doing the fertilization, या कह सकते हैं during the fertilization event, the crossing over of DNAs occur. So that's why the variations occurs in the human body, in the sexually reproducing beings. It is clear to everyone? Why? What is the reason why the variations occur? This is due to during the gamete formation, because in the gamete formation all the characters are not get transmitted, some are deleted out, some additional parts are added, and when the fertilization is going on, both the characters of the male and female get fertilized. Both the characters of male body and the female get combined together, and that during the combination क्या होता है, जैसे आप दाल चावल बना रहे हो, ठीक है, आप सब चीज रखे हो, लेकिन कम टाइम क्या होता है कि दैट दाल गेट सम नमक गेट मतलब the amount of salt is added in such a way that it is not required at कह सकते हैं हम जो पहली दाल हमने बनाई थी उस तरह की नहीं है, या फिर हमने 1 चम्मच ज्यादा नमक डाल दिया. सो दैट इज द थिंग that occurs over here. कुछ चीजें मिस आउट हो जाती है, कुछ चीज ज्यादा हो जाती है, या फिर कोई चीज जो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन. समझ में आ गया? सो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन के समय ये आता है, या फिर जब गैमीट फर्टिलाइज करते हैं जाइगोट बनाने के टाइम पे, क्योंकि कुछ चीज डिलीट हो जाती है, कुछ एड ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आता है. गॉट द पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. तो वेरिएशंस क्यों आता है? Variations occur due to some deletion या some addition of the gametes, या क्रोमोसोम नंबर के कुछ एडिशंस में आ जाते हैं वेरिएशंस. और ये जो वेरिएशंस होते हैं बेटा 3 तरह के होते हैं. न्यूट्रल होते हैं, मतलब it do not have any impact on the body, मतलब it is not benefited or it is harmful, ठीक है.
तो the first is one is neutral, the second one is it is having a beneficial impact on the body, and the third one is it is harmful impact on the body. Like some chromosomes are added in our body, ये क्या करते हैं, it makes us capable for the survival purpose, ये हमारी बॉडी को थोड़ा सा सर्वाइवल के लिए केपेबल बनाते हैं, तो दैट टाइप ऑफ वेरिएशन इज गुड फॉर अस. लेकिन द सेकेंड टाइप जो होता है, कुछ हमारे एडिशनल, जैसे क्रोमोसोम हमारा नंबर है, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या हुआ, जो हमारा 15 नंबर का क्रोमोसोम था, एग्जांपल आई एम गिविंग, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई कलर. ठीक है, सपोज इन आवर बॉडी 15 number chromosome is there and it is responsible for the eye color, and during the gamete formation what occurs कि this gametes get deleted, ये जो हमारा क्रोमोसोम नंबर था 15 वो डिलीट हो गया. सो व्हाट विल हैपन कि जो हमारी बॉडी का आई कलर होगा वो जो है, फिर अगर आपका बॉडी का आई कलर जो है वो ब्लैक होता है, वो होगा ही नहीं, बिकॉज हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर 15 है वो डिलीट हो चुका है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डिलीशन इज हार्मफुल फॉर अस. कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आपने पैटर्नल सिंड्रोम सुना होगा, है कुछ तरह के सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है या एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है, वो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. ठीक है, क्योंकि ऐसे तरह के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं. स्टेराइल मतलब होता है दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो और ये हमारी बॉडी के लिए केपेबल, ये जो जितने भी हैं असर्शन, डिलीशन या न्यूट्रल, कुछ तो हमारे लिए जो वेरिएशंस है बहुत मतलब इट इज अ बेनिफिशियल, समटाइम्स इट इज हार्मफुल एंड समटाइम्स इट इज न्यूट्रल. ठीक है, सो ये मैंने बता दिया, इट इज क्लियर टू यू. सो दिस वाज ऑल अबाउट द general discussion about the variations, and I think I have given a clear detailed explanation in the previous classes. Now I'm going to start with the chapter that is heredity and the evolution. So here terms come heredity. So can anyone give something, can anyone tell what do you mean by heredity? Heredity क्या होता है, कोई बता सकता है? What do you mean by heredity? Species. Heredity is not a species, but a species is different. Ma'am, the inheritance from the parents. Acha, heredity is the differences that occurs from the parent, that occurs in the young ones from the parent. Exactly, we can say that heredity is the process of transmission of characters from the parents to the offspring. Heredity क्या है? It is a systematic study. जैसे as we all know, the science is a systematic study. Heredity क्या है? Heredity is the process of transmission of characters from parents to offspring. आपने देखा है कि whenever you see a flower, whenever you see a human beings, so the human beings and human beings when give the birth to the young ones, so the parents and the offsprings, they look exactly with कह सकते हैं कि दोनों जो है नॉट एग्जैक्टली लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो आपके घर में कोई भी जब गेस्ट आते हैं तो जिस जनरली ये जनरल सबके घर में होता है, दे से दैट यू रिसेंबल विद योर मदर, यू रिसेंबल, यू नोज रिसेंबल विद योर फादर. So how they can say, they say that this girl resemble with her father, yeah, this boy resemble with her father. So what are the things over here? क्या चीज ऐसी है जो कि हमारी पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही है, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं. या फिर आप ये सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि एक कुत्ता जो होता है, जब कुत्ते का जो बेबी पैदा होता है, यानी कि जो किटन्स होते हैं, तो वो एग्जैक्टली उस डॉग की तरह रिजेंबल करते हैं. तो कुछ ना कुछ तो वो ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी वजह से कुत्ते का बेबी हमेशा कुत्ता होता है और गाऊ का बेबी हमेशा काऊ का होता है, ह्यूमन का बेबी हमेशा ह्यूमन का होता है. कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है ना, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं और ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनके बीच का कनेक्शन बना हुआ है, और हमेशा डॉग का बेबी डॉग ही होगा, काऊ का बेबी काफ यानी कि काऊ ही होगा. सो ये कंटिन्यूटी क्यों बनी हुई है? बिकॉज कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, और वो जो फैक्टर जो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी, दैट इज अ हेरिडिटी मटेरियल. सो हेरिडिटी क्या है? Heredity is the transmission of characters from the parents to the offspring. जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं हेरिडिटी. समझ में आया? What do you mean by heredity?
Yes, ma'am. ठीक. सो हेरिडिटी क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, जो हमारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. गॉट द पॉइंट? आई थिंक इट इज क्लियर. हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. हेरिडिटी इज द process of transmission of character from the parents to the offspring. Is it clear? Yes, Is it ma'am. clear? Is there any doubt? Is there any doubt? No, ma'am. Okay. Ma'am, as you said that like ma'am जो हमारा 15 नंबर का क्रोमोसोम है वो हमारी आई कलर के लिए होता है. It is just an example. Shivangi, it is just an example. ऐसा हमारी बॉडी में होता नहीं है. ठीक है, हाँ बताओ. मैम आई कलर डिपेंड किस मतलब आई कलर्स हमारे मतलब आई के कलर्स किस चीज पे डिपेंड करता है हमारे? बेटा हमारे बॉडी में डीएनए होता है ना, तो डीएनए में पर्टिकुलर डीएनए में आपको पता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड द क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं उसमें जीन्स होते हैं, तो दीज जीन्स आर गवर्निंग दैट. ठीक है, हमारी बॉडी में जो पर्टिकुलर हमारा कलर है, हमारा स्किन कलर है, हमारी हाइट है, ये पर्टिकुलर फैक्टर्स हमारे जो डीएनए है उसमें पर्टिकुलर जो कह सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं. देन जीन्स आर गवर्निंग दैट. अभी आपको इसको इलैबोरेटेड फॉर्म में बताते हैं. ठीक है, अदर नेक्स्ट थिंग इज दैट हेरिडिटी समझ में आ गई. अब आता है आपका इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय इनहेरिटेंस? मैम मतलब हमने अपने पेरेंट्स से वो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए हैं, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स थे उनसे हमने ये इनहेरिट किया, ये सीखा है हमारे अंदर ये हाँ बिल्कुल सही हम कह सकते हैं. देखो आप ये फेनोमेना होता है जिसकी वजह से जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं. ठीक है, इट इज अ सिंपल फेनोमेना बाय व्हिच द हेरिडिटी फैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक, तो इनहेरिटेंस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इट इज अ फेनोमेना ऑफ ट्रांसमिटिंग द कैरेक्टर्स. और वो जो कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. ठीक है, और जो प्रोसेस के थ्रू आ दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. ठीक, अब ये जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस है इसको हम स्पेशल बायोलॉजी में स्पेशल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. ठीक है, सो what is genetics? It is a branch of science that deals with the study of heredity and inheritance. ठीक है, genetics. Genetics क्या है? It is a branch of science that deals with the study of heredity and the inheritance. Heredity is the process of transmission of character from the parents to the offspring and the phenomena of transferring these characters. This is called as inheritance. And इसकी study को हम लोग क्या बोलेंगे? Genetics. Okay? Yes, ma'am. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो वर्ड है जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया है? कोई आइडिया? Who gave this word genetics? मैम कोई साइंटिस्ट ही होगा. ये तो कॉमन सी बात है. Shivam Kumar, Palak Ahuja, Achal and all, I'm not going to call your names again and again. If you want to just continue the class and you want to just take the session, please turn on the video. Please turn on the camera. ठीक है? हाँ. So this term was given by, जैसे शिवानी ने बोला है साइंटिस्ट, ऐसे हम भी बता दें कि it was given by scientist. 1906 में बेटसन ने टर्म दिया था आपका जेनेटिक्स. So just note it down. This term was given by Bateson in year 1906. ठीक है, so genetics किसने दिया था? Bateson ने दिया था. कब दिया था? 1906 में दिया था. Got the point? Yes, ma'am. 1905 में दिया था. बेटा 1906 में दिया था. अब देखिए यहाँ पर कई सारे बुक्स हैं, कहते हैं 1905 में दिया था, कुछ लोग कहते हैं 1906 में दिया था. एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर डेट तो मेंशन है नहीं, तो जनरली क्या है कि लास्ट ईयर्स में देते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1906 में. ये एग्जैक्ट हमारे पास डेट एविडेंस नहीं है कि कोई हम प्रूव कर सके कि कहाँ पर है. ये बुक्स बाय ऑथर ये जो है डिफर करता है, लेकिन एग्जैक्टली 1906 ही हम लोग मानते हैं. ओके? Yes, ma'am. Okay,
So it's 1906, not 1905. Okay, we are going to discuss with the next factor, that is variation. हमें जो कि लास्ट ईयर भी लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है, व्हाट इज वेरिएशन. वेरिएशन मींस डिफरेंसेस. और ये डिफरेंसेस जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सोमैटिक और दूसरे होते हैं जर्मिनल. सो जर्मिनल वेरिएशंस क्या है और सोमैटिक वेरिएशंस क्या है. देखो, जर्मिनल वेरिएशंस जो होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम नंबर में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, दैट इज कह सकते हैं जो हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, क्रोमोसोम के नंबर में डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक वेरिएशन. सो व्हाट इज यू मीन बाय वेरिएशन? वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस that occurs from that occurs in the young ones. And how many types of variations are there? There are two types of variation. The first one is somatic and the next one is germinal. So somatic variation is that occurs in the variation that occurs in the physical properties like eye color and all. That is a somatic one. And germinal variation is the variations in the chromosome number. ठीक है. सो जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है? जो हमारे क्रोमोसोम नंबर में जो डिफरेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ जर्मिनल वेरिएशन. एंड सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है? जो हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाते हैं. ठीक है. फिजिकल मतलब फिजिकल फैक्टर्स की वजह से जो वेरिएशंस आते हैं, फिजिकल फैक्टर्स की, जैसे हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, और हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर हो गया, इंटेंस हीट हो गई, और कह सकते हैं कि हमारा फूड वगैरह है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ वगैरह पे जो इम्पैक्ट आता है, हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, जो वेरिएशंस आता है, ठीक है, दैट इज अ सोमैटिक वेरिएशन. और जर्मिनल वेरिएशन जो होता है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर की वजह से आता है. ठीक है, गॉट द पॉइंट? सो वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप, जर्मिनल वेरिएशंस एंड सोमैटिक वेरिएशंस. Okay, now we are going to discuss about the main scientist, कह सकते हैं कि जिनका पूरा जेनेटिक्स, जिनके बारे में हमें पढ़नी है, जिनके लॉज को हमें पढ़ना है, ठीक है, जो मेन है इसमें, उनके बारे में हमको बता दें. दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज सर ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. सब लोग नोट कर लीजिए, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 मार्क्स में आता है, इनके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल से रिलेटेड आता है. और इस हेरिडिटी में, और दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. इन हेरिडिटी वी आर गोइंग टू डील विद मेंडल ओनली. ठीक है. सो मेंडल कौन है सर? मैम फादर ऑफ जेनेटिक एंड फादर ऑफ हेरिडिटी सेम है. मैम फादर ऑफ जेनेटिक्स. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डील विद दैट पार्ट कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. सो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल. फादर ऑफ हेरिडिटी और फादर ऑफ जेनेटिक एक ही है. नहीं, they are not same. They are not same. They are not same. We are dealing with that genetics only. Okay. ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर की स्पेलिंग लिखिए, जॉहन है, जॉन नहीं है. ठीक है, JOHAN, जॉर्ज, और मेंडल. मेंडल क्या आपको पता है? MENDEL. सो ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. Okay, now we're going to discuss about the next thing, that when this जो आपके हमारे जो फादर हैं जेनेटिक्स के, ये कब बॉर्न हुए थे, कहाँ पर, तो इतना वैसे आता नहीं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग द जनरल डिटेल अबाउट दी साइंटिस्ट. इनका जो ये ऑस्ट्रिया में ब्रुन जो है, इट्स सिटी, वहां पर ये बॉर्न हुए थे. ठीक है. और इनकी जो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, दैट इज द मेन थिंग. ठीक है, दैट वी हैव टू डील विद आउट इन दिस चैप्टर, कि इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था पाइजम सटाइवम, दैट इज अ गार्डन पी. ठीक है. सो जो मेंडल थे, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. क्यों कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? बिकॉज इन्होंने बहुत सारा वर्क किया था इन द जेनेटिक्स. ठीक, इन्होंने क्या किया था, अपनी पूरी लाइफ एक्सपेरिमेंटल किया था. और ये जो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, ये सब कुछ जो है मतलब जो इनको फेम मिला, इनके मरने के बाद मिला. वो भी 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कॉरेंस और ट्रेचरमैन. ह्यूगो डी वेरीज और कार्ल कॉरेंस और ट्रेचरमैन
वजह से ही इनको फेम मिला था बाद में। पहले इन्होंने 7 साल तक जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से शायद 1665, हाँ 1865 तक, सॉरी 1856 से 1865 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 56 से 65 तक एक्सपेरिमेंट किया 7 इयर्स का। और ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या किया इन्होंने, इसका एक रिकॉर्ड बना के रखा था। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने पी प्लांट पे किया था, और ये जो पी प्लांट पे किया था इसलिए इनके लिए ये चीज पॉजिटिव थी। और क्यों पॉजिटिव थी अभी बताती हूँ। सो तो ये आपको क्लियर हो गया कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था इनका, पी प्लांट था। कौन सा पी प्लांट, कभी कभी आ जाता है गार्डन पी प्लांट, वाइल्ड पी प्लांट, तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर गार्डन पी, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंटल का मटेरियल क्या था, गार्डन पी था। और इसका जो है आपका साइंटिफिक नेम होता है, क्या होता है, पाइजम सटाइवम, ठीक है। सो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, दैट इज पाइजम सटाइवम, as it is scientific name, तो we have to underline it, ठीक है। So पाइजम सटाइवम क्या है, is a garden pea है, and garden pea is the experimental material, ठीक है। It was the experimental material used by the Gregor John Mendel, जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेट कब किया था, अभी मैंने बताया ना कि when he performed 1965। हाँ ठीक है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या यूज किया था, पी प्लांट, और यही इनके लिए बेनिफिशियल था जो कि इनको रिजल्ट मिल पाया। क्यों, क्योंकि देखो पी प्लांट जो होता है इट इज एनुअल प्लांट, ठीक है, इट इज नॉट अ पीनियल प्लांट, ये एनुअल प्लांट था, तो इनको जो रिजल्ट था वो बहुत जल्दी मिल गया, ठीक है। पहला चीज था कि इट इज एनुअल प्लांट, सो दैट इट इज कह सकते हैं इट इज गुड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल, एनुअल प्लांट था। दूसरी चीज थी इट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों जो सेक्सेस थे एक प्लांट पे थे, सो दैट इट डू नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन सम पॉलिनेटर एंड ऑल, इसको किसी पॉलिनेटर पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये पॉलिनेटर पे डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। और इसमें क्या है कि अपने आप इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर, ठीक है, तो ये भी इनका एडवांटेज था। सो व्हाट इज द एडवांटेज, फर्स्ट मैंने बताया कि इट इज अ एनुअल प्लांट, सो द रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट स्पैन में इनको रिजल्ट मिल जा रहा था। दूसरा था इट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल था, मेल और प्लांट्स जो फीमेल थे दोनों एक तरह से, और इनके जो पार्ट्स थे, जो दो आपके मेल और फीमेल प्लांट्स थे वो बड़े थे, ठीक है। इट्स नॉट हैविंग द कह सकते हैं फ्लावर इज बिगर इन साइज, इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन इट इज ऑफ दैट साइज कि हम लोग कुछ एक्सटर्नल करना चाहें, मतलब पॉलिनेटर्स को डस्ट करना, पॉलिन ग्रेन्स को डस्ट करना चाहें, या किसी चीज को रिमूव करना चाहें, इमास्कुलेशन करना चाहें, तो वो सब हम कर सकते थे, ठीक है। सो दिस इज द मतलब मेरिट, कह सकते हैं कि ये इनके लिए एडवांटेज था पी प्लांट को चूज करने का। ये था एक तो ये था कि वो शॉर्ट स्पैन में डेवलप करता था। दूसरा चीज क्या था कि इसके जो प्लांट्स जो था इसमें मेल और फीमेल प्लांट्स एक ही पार्ट में थे, बाइसेक्सुअल था, ठीक है। और इसमें किसी को एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके जो पार्ट्स थे वो बड़े थे, तो अगर कुछ हम बाहर से करना चाहें, यानी पॉलन ग्रेन्स को डस्ट करना चाहें डिजायर्ड क्वालिटी के, तो हम सब कुछ कर सकते थे। सो दैट्स व्हाई इट वाज अ गुड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूजन बाय द साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। इज इट क्लियर, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो थे वही उनको बेनिफिट किया इस मतलब इसके रिजल्ट पाने के लिए, ठीक है। अगर इन्होंने कोई दूसरा प्लांट चूज किया होता, मैंगो चूज किया होता, या फिर आपका जो है जैकफ्रूट चूज किया होता, तो शायद उनको रिजल्ट ना मिलता। इन्होंने पी प्लांट चूज किया, और पी प्लांट चूज करना ही इनके लिए क्या हो सका, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पाने के लिए इनके लिए एक बेनिफिट पॉइंट जो है वो प्रूव हो सका फ्यूचर में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाई पी इज अ गुड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, या व्हाई पी ही हैज चूजन पी फॉर द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ठीक है। तो उन्होंने बता देना, मतलब जब आएगा तो आंसर तो लिख लीजिएगा कि पी इज अ annual plant, ठीक है। So in a short period of time we can get a result. The second thing is that it is a bisexual plant, so both the males and the females are present within the same flower, so we don't have to depend upon some external
factors for the fertilization. ठीक है. And the next thing is that that is the flowers parts are having the as much as accurate size, so we can whatever the external experiments we want to perform on it, we can do it. Is it clear? Yes ma'am. ठीक है. अब आगे चलते हैं कि अब जो प्लांट्स था हमारा, तो प्लांट्स में आपके कुछ ट्रेट्स थे, ठीक है, जो डोमिनेंट थे या रेसेसिव थे, या डोमिनेंट्स क्या होते हैं, रेसेसिव क्या होते हैं. आई थिंक आई हैव टेकन योर 30 minutes, ठीक है. So in the next class we are going to deal with the terminologies, and your homework is that what you have to do, whatever the terminologies are related to that genetics chapter, this chapter you have to go through that. ठीक है. I'm just giving the image of that portion, ठीक है. You have to just read it on. मेरे पास PDF है, मैं उसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर के आपको देती हूँ, ठीक है. आप उसको पढ़, जो भी टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दैट. और जो चीज नहीं समझ में आएगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. इतना आज के लिए काफी है. इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. मैम इज इट क्लियर? आज के क्लास में जो भी पॉइंट्स बताए वो क्लियर है? हाँ बेटा. मैम उन्होंने पी प्लांट किस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था? बेटा वही एक्सपेरिमेंट जो है that has given the 3 laws. इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, ठीक है. दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है. और इस एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने दिया था, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. और एक्सपेरिमेंट जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी के बेसिस पे उन्होंने 3 लॉज दिए थे. और एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. या एक हम थोड़ा सा अब रिव्यू दे देते हैं कि उन्होंने पी प्लांट को लिया, एक लंबे पी प्लांट को लिया, बहुत लंबे, और एक छोटे पी प्लांट्स को लिया, ठीक. फिर क्या किया उन्होंने, लंबे प्लांट्स को कई साल तक ग्रो कराया, फिर छोटे प्लांट को कई साल तक ग्रो कराया. तो उन्होंने मिला कि लंबे प्लांट से लंबे प्लांट ही मिल रहा है, छोटे प्लांट से छोटे प्लांट ही मिल रहा है. फिर क्या किया उन्होंने, एक लंबा लिया और एक छोटा लिया. अब लंबे प्लांट को छोटे प्लांट से क्रॉस कराया, तो उन्होंने जब पहली बार क्रॉस कराया तो जो पहली जनरेशन में प्लांट्स थे सारे लंबे मिले, ठीक है. फिर क्या किया उन्होंने, जो अब प्लांट्स आए थे, ठीक है, जो लंबे थे, लेकिन बेटा वो लंबे तो थे, लेकिन उनकी जो उनमें जेनेटिक वेरिएशंस था, जब उनमें क्रॉस कराया गया तो जो नई जनरेशन आई उसमें उनको ये पता चला कि उसमें 3 प्लांट तो लंबे थे, एक छोटा आया. तो आपने ये देखा कि पहली जनरेशन में कैसे थे, लंबे आए. दूसरी जनरेशन में आप पे क्या है, 3 लंबे आए, एक छोटे आए. तो छोटा लंब कैरेक्टर कैसे आया? इसका मतलब है कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में. तो वही एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने पूरा प्रूव किया था कि कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे क्या चांस होता है. जैसे किसी एक पर्सन की शादी अगर ए ब्लड ग्रुप है उसकी शादी जो है वो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से होती है, तो क्या चांसेस होते हैं बच्चे के ए ब्लड ग्रुप होने के या बी ब्लड ग्रुप होने के. सो वो पूरा हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आई थिंक यू हैव गॉट अ रिव्यू इन योर माइंड कि कैसे क्या है इस चैप्टर में. सो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल समझ में आ गया ना, क्या एक्सपेरिमेंट था, पी प्लांट पे किया था, उसकी स्टेम हाइट को लेकर के, फिर फ्लावर कलर पे भी उन्होंने किया था. ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी उन बच्चों को मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है. तो आपको मैं ये बोलूंगी कि मैं टर्मिनोलॉजीज आपको दे रही हूँ, आप उसको जस्ट गो थ्रू हो जाओ कि क्या है. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डील विद दैट, ठीक है. हेरिडिटी इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर. इट इज रिलेटेड टू मतलब इन दिस चैप्टर साइंस इज देयर, बट मतलब इट इज अ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, वी कैन से दैट. इसमें साइंस भी है एंड वी आर हैविंग द मैथ्स इन मतलब मैथ्स आल्सो इन दिस चैप्टर. ओके, so I think it is better to wind up the session. So thank you class and have a great day ahead. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.